Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature, and welcome to yet another lecture. This is going to be a very engaging lecture because I'm going to discuss Richard Hoggart. He's one of the major figure of cultural studies. I've already made a series. This is a continuation series of that cultural studies videos. You can watch other videos as well. My suggestion would be to go and watch the previous videos on cultural studies that I have made and then come to this video so that you would be more able to understand what culture studies is all about. Also, if you want to join my Telegram channel, then link is in the description. You can join there. I share PDFs, I share MCQs, everyday MCQs, and a lot more. Now, coming to this topic, Richard Hoggart. Because UGC has already asked multiple questions regarding this. So there is a place called CCCS, which means ki Center for uh, Contemporary Cultural Studies. तो abbreviation से questions already आ चुके हैं. UGC have already asked this question, and he is also one of the major figure of this, or let's say founding father. All right, now let's try to understand Richard Hoggart. He was born in 1918 and he died in 2014, which means he is our contemporary. His famous work, I think UGC has also asked a question related to the chronological order of his works. So the first work which was published was The Uses of Literacy, which is again a landmark work for Richard Hoggart. He is a British cultural critic and one of the founding figures of the cultural studies, as I've already mentioned, one of the founding figure of Center for Contemporary Cultural Studies. Now, published in 1957, the book is blend of autobiography, which means whatever he has experienced throughout his life. There is a crux in this particular work. There is a social commentary. There is a cultural analysis as well. It investigates how working class culture in Britain, especially during the 20th century, somewhere around 1950s, 1960s, was changing under the influence of the mass media, consumerism and Americanization. So please do remember, he will discuss about mass media. Mostly he will discuss about advertisement, mass media, consumerism, Americanization. So his approach would be Marxist approach. Whenever it comes to economy, whenever it comes to consumerism, whenever it comes to, let's say, making things, whenever it comes to bourgeois class or proletariat class, working class, then it's always about Marxism. All right. And I have also made a video on Marxism. You can also check that out. Now, Richard Hoggart's central concern is the loss of authentic working class and the rise of the more standardized commercial culture. So he was not actually against the standardized commercial culture, but he was trying to critique like what has happened to the authentic working class in presence of standardized commercial culture, in presence of Americanization, in presence of mass media, in presence of consumerism. Because there was an industrial, let's say, because we have already seen industrialization, especially in the let's say Victorian time and even in the modern time. But now here in the 1950s, after the Second World War, there was a large number of commercialization. There was a large number of mass media production. So due to which there was the authenticity of the lived experiences was lost somewhere. So this is what he is trying to criticize. He's trying to understand the lived experiences of common man, of a common people, of a working class people. So now the structure of the book. The structure of the book is something which has two major parts. पहला कहता है an order, which means there was an order. So he says it draws from the Hoggart's own memories. Since I have already mentioned, it is a kind of autobiographical essays, where he actually jots his memories of working class in Leeds, because he belongs to Leeds. He belongs to a place called Leeds in England, and he also belongs to the working class man. He also belongs to the middle class man. So he has the fresh experience, of living within the middle class family. Now he provides a detailed account of working class life, family routine, community bonds, local pubs, church groups, popular songs, reading habits, and more. So he's trying to understand, how people bonds within a community, how local pubs were back in those days, when he was trying to understand, before coming to the commercialization, before
all these happenings, all these new happenings, especially the advertisement and this commercialization of culture. अब की पॉइंट कहता है वर्किंग क्लास कल्चर वाज ऑर्गेनिक, obviously it was organic, it was authentic because it was based on the lived experiences, it was self created, है ना, people came together, people made a community together, है ना, which was self contained, self created and morally coherent. Families shared values like thrift, loyalty, honesty and mutual aid. So all these elements were there, है ना, जब हम वर्किंग क्लास कल्चर की बात करते हैं. Then reading included penny papers, moral stories, biblical readings, self improvement cultures, literatures. So all these things were a part of that community before commercialization happened. तो ये जो बिफोर कॉमर्शलाइजेशन था, उससे पहले का जो कल्चर है, उससे पहले की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, ये ऑथर ने अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू उसने लिखा है. तो बेसिकली all in all what he was trying to understand is the authenticity of the lived experience of the working class culture. So एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, एग्जाम में मे बी दे विल आस्क यू रिचर्ड हॉगर्ट की जो बेसिक कंसेप्शन है ना, वो किसके ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है वर्किंग क्लास कल्चर के ऊपर है, या फिर लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग क्लास कल्चर के ऊपर है ना. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क यू, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं. एंड देन पार्ट 2 में यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसी प्लेस को फिर क्या किया दूसरे पार्ट में, एक है एक नया बिल्डिंग, मतलब एक तरह से नई सोसाइटी बनाना, है ना. ये जो कमर्शलाइज सोसाइटी है, पहले था एक लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू ऑथेंटिक सोसाइटी, एंड देन हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू कमर्शलाइज्ड सोसाइटी. कहता है इट इज बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड मीडिया एनालिसिस ऑफ द 1950s. सो उसने बहुत सारे मीडियाज को एनालिसिस किया, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मीडिया शेप्ड रियलिटी, है ना. फिर कहता है कि हॉगार्ट शिफ्ट फ्रॉम द मेमोir टू द कल्चरल क्रिटिसिज्म एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मास कल्चर. सो ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न मास कल्चर, स्पेशली न्यूज़पेपर, किस तरह से न्यूज़पेपर, है ना, समाज को डिफरेंट कर रहा है, एडवर्टीजमेंट, रेडियो, अमेरिकन सिनेमा, न्यूज़पेपर किस तरह से समाज को बदल रहा है. न्यूज़पेपर जो है वो सेंसेशन क्रिएट करने लगा, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी है न्यूज़पेपर की, जो न्यूज़पेपर का काम है ऑथेंटिसिटी दिखाना, लोकल कल्चर का या फिर लोकल न्यूज़ को एकदम बिल्कुल एज इट इज़ दिखाना, अब वो नहीं रह गया. अब क्या हो गया है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो सिर्फ हेडलाइंस देते हैं, और ऐसे हेडलाइंस, आई कैची हेडलाइंस, सेंसेशनल हेडलाइंस देते हैं ताकि लोगों का उस पर नज़र जाए, है ना, लोग उसको पढ़े. और कहीं ना कहीं ये जो आई कैचिंग सेंसेशनल जो टाइटल होता है ना, उससे जो ट्रुथ है, जो ऑथेंटिसिटी है न्यूज़ की, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, कहीं ना कहीं खो जाती है. तो इसलिए वो कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़ जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, है ना, ये सब क्या करता है, ये सब कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों से दूर करता है, हमें अपने समाज से दूर करता है. उसी तरह से एडवर्टीजमेंट में हुआ, एडवर्टीजमेंट को इस तरह से दिखाया जाने लगा, मोर एंड मोर वोकल होने लगे एडवर्टीजमेंट, मोर एंड मोर कह सकते हैं कि ये जो होता है, जैसे सोसाइटी ऑफ स्पेक्टिकल्स एक वर्क है गे डिबो का लिखा हुआ, तो उसमें वो कहते हैं कि किस तरह से स्पेक्टिकल क्रिएट किया जाता है सो दैट मास कल्चर को क्या कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अपनी तरफ खींच सके, है ना. लेट्स से इंस्टाग्राम का एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर वाचिंग इन इंस्टाग्राम, इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, देन यू वुड नो कि आजकल इंस्टाग्राम में क्या हो गया है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर किए जाने लगे हैं, या फिर वैसी चीज़ें जिसका कोई वैल्यू नहीं है समाज में, जिसका कोई एक सेंस में कह सकते हैं कि यूज़ नहीं है, लेकिन वो एक सेंसेशन क्रिएट करता है ना. तो इन सारी चीज़ों को जब दिखाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, एक जो रियल लिविंग एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं खो गया, है ना. इसी तरह से जैसे बॉडलियार को पढ़ेंगे आगे, सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन में जब वो बात करते हैं कंप्लीट सिमुलेशन, एक हाइपर रियलिटी की बात करते हैं, उसी तरीके से अब जैसे न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर या टेलीविजन शोज़ है, टेलीविजन शोज़ में क्या होने लगे कि जो ऑथेंटिक है, एक ऑथेंटिक रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंसेस है, या फिर कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल, जो भी रियल लोकल पॉलिटिक्स है, उसको दिखा के, उसको ना दिखा के, बल्कि एक सेंसेशनल न्यूज़ बना दिया गया. जैसे अगर आप टेलीविज़न को ओपन करोगे, तो आप इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे ही अगर सपोज अभी टेलीविज़न को ओपन करोगे, तो आप जो डिबेट्स दिखोगे, वो डिबेट्स कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स नहीं है, वो सारे के सारे डिबेट्स जो टेलीविज़न पे चलते हैं आजकल, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन क्रिएट करता है, अटेंशन सीख करता है. जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा था, उसमें हमारे इंडियन चैनल ने तो ऐसे लिख दिया कि
पाकिस्तान पे कब्जा, है ना? हमने पाकिस्तान पे फ़तह कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान के इतने ड्रोन्स गिरा दिए, हमने पाकिस्तान को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और ये भी कि इंडिया की जो ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तान में घुस गई, है ना? अब पूरा पाकिस्तान हमारा होगा, गजवाए हिंद, पता नहीं क्या-क्या। तो all these things create sensation, all these things create impurity, all these things create, कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक लिव्ड एक्सपीरियंस को, मतलब अनरियलिस्टिक लाइफ को एक्सपीरियंस मतलब बताता है। तो यही कह रहा है कि किस तरह से जो मास मीडिया है, मास कल्चर है, एडवर्टाइजमेंट कल्चर है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से समाज को क्या किया है, वो जो लिव्ड एक्सपीरियंस था, एक ऑथेंटिक लिव्ड एक्सपीरियंस था, उसको खत्म करके क्या कर दिया है, एक न्यू कॉमर्शलाइज्ड सिस्टम में तब्दील कर दिया है, जो कि बाद में हम बॉडलियर के कॉन्सेप्ट में हाइपर रियलिटी को पढ़ेंगे कि ऑल दिस थिंग्स बिकम्स हाइपर रियल, है ना? सो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा जो कल्चर स्टडीज़ है ना, बहुत मिक्सचर है, बहुत एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड है ना? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्चर स्टडीज थॉरली यू नीड टू रीड अ लॉट, है ना? खासकर जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं, पोस्ट मॉडर्न थॉट्स हैं, है ना? उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इस कल्चर स्टडीज़ को समझ पाओगे। कल्चर स्टडीज़ अपने आप में मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मे बी डिफिकल्ट आल्सो चैप्टर्स हैं, है ना? एनीवे आगे चलते हैं। दिस इज़ वेयर आई कम, मतलब मेरा एक ही मकसद है कि मैं अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। नाउ की पॉइंट्स, सम ऑफ द की पॉइंट्स इज़ मास मीडिया वाज़ प्रोड्यूसिंग कैंडी फ्लॉस वर्ल्ड व्हिच मीन्स ऑफ कोर्स अ फेक वर्ल्ड, है ना? ऐसा लगता है जैसे कैंडी फ्लॉस का मतलब है जैसे कैंडी हवा में उड़ रहा होता है, जैसे आप भी कैंडी खाए होगे, वो शुगर से बनता है, सुगरी होता है और हवा में उड़ते रहता है ना? वो जो पिंक कलर का जो बिकता रहता है मार्केट में। तो वैसे वर्ल्ड को, एक सुपरफिशियल वर्ल्ड को, है ना? एक हाइपर रियल वर्ल्ड को क्रिएट करता है ना? प्लेज़र को क्रिएट करता है, इमोशनल मैनिपुलेशन करता है, फ़ॉल्स नीड को दिखाता है। जैसे प्लेज़र के सेंस में कि आपको सेंसेशन क्रिएट किया गया एंड यू वुड बी वेरी एडिक्टेड टू वाचिंग दैट, है ना? इवन दो यू नो यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, आज के टेलीविज़न्स को जब आप ओपन करोगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंसेशन क्रिएट किए जाएँगे। इवन दो यू नो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम इट, यू आर नॉट let's say getting the factual knowledge, factual details, but still you are watching क्योंकि वो स्पेक्टिकल क्रिएट कर रहा है। फिर इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, स्पेशली किसी चीज़ को खरीदने के लिए। जैसे अगर बिग बिलियन डे आ गया, बोला जाएगा फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे आ गया, तो हर चीज़ सस्ते में मिलेगी, बट एक्चुअली में सस्ते में कुछ होता ही नहीं है। बट स्टिल एक सेंसेशन के थ्रू, एक इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू दे विल टेल यू। जैसे इमोशनल मैनिपुलेशन का एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज यू आर वाचिंग एन एडवर्टाइजमेंट, सपोज आईफोन का एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, इवन दो आईफोन इज नॉट अ गुड फोन एट ऑल, इसके कैमरे सिर्फ अच्छे होते हैं, अदरवाइज देयर इज नथिंग मच इन इट, बट स्टिल जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में दिखाया जाता है कि वी हैव मेड फॉर यू, है ना, यू नीड दिस, या इस तरह से जो चीजें कहते हैं ना कि आप इसको खरीदने के बाद आप परफेक्ट फील करोगे, तो इंसान अपने आप को कनेक्ट कर पाता है उससे, है ना? तो लोगों को लगता है कि ओके दिस इज मेड ओनली फॉर मी। इसलिए जब मैंने जब भी देखा है एप्पल के एडवर्टाइजमेंट को, तो उसमें हमेशा ऐसे ही दिखाया गया है कि ये हमने आपके लिए ही बनाया है ना? दिस इज ऑल फॉर यू, एक तरह से ये आपके बेनिफिट के लिए, यू वर्थ इट, इस तरह से, है ना? यू नीड दिस, मतलब यू नीड दिस नहीं, मतलब यू डिजर्व दिस, इस टाइप की चीजें। तो ये एक सेंसेशन क्रिएट करता है आपके अंदर, एक वो थॉट जगाता है कि हाँ आप ही के लिए बना है, एंड यू मस्ट बाय इट, एंड इफ यू विल बाय इट देन यू विल फील लाइक यू आर फ्री, और यू आर मतलब एक अलग ही दुनिया में फील करोगे, बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है ना? हाँ, फिर कहता है कि ही क्रिटिक्स टू राइज ऑफ सेंसेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, पॉप म्यूजिक, रोमांटिक फिक्शन, एडवर्टाइजिंग एंड पैसिविटी ऑफ कंज्यूमरिज्म, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सारी चीजें। नाउ देयर इज एन इंटरप्रेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। The structure highlights the contrast between a past culture and authenticity, which I have already experienced। ये जो past culture है, जो authenticity है ना, वो moral seriousness को दिखाता था, एक community को, एक shared community को दिखाता है, which was shared by all। Let's say if there was a song in pub, if there was a song playing in pub, तो हर कोई साथ में sing करते थे, है ना? हर कोई एक कह सकते हैं कि एक जैसे सिविक सॉलिडारिटी होता है, कोई चीज होता है तो, है ना? या फिर एक सेंस में कि हर कोई उस चीज को फील करता था, हर कोई उसको अपने आप को लगता था कि हाँ दिस इज ट्रूली मेड फॉर द कम्युनिटी। लेकिन धीरे धीरे हर चीज सुपरफिशियलिटी में बदलता चला गया, सब कुछ क्या होने लगा, आर्टिफिशियल प्लेजर फील होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि कॉमर्शलाइज हो गया, चीजों को बेचना, मतलब जितनी ज्यादा बेच सके कम्युनिटी, जितनी ज्यादा बेच सके ये जो कैपिटलिस्ट समाज है, उसके लिए वो जितना ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट कर सके, जितना ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ें दिखा सके। जैसे अगर आप जोमेटो या स्विगी यूज़ करते हो, तो अचानक से मैसेज पॉपअप होगा
कि यू आर हंग्री, मतलब इस तरह से मैसेजेस आएंगे तो यू विल बी वेरी विलिंगली, यू वुड बी ऑर्डरिंग फूड, इवन दो यू आर नॉट हंग्री, बट स्टिल आपको अंदर से क्रेव होगा कि यू आर हंग्री, एंड ये जो फूड है वो स्पेशली आप ही के लिए बनाया है। इवन दो जोमेटो और स्विगी पे अब फूड्स अच्छे नहीं आते हैं, एज फार एज आई नो, मैं पहले बहुत जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करता था, बट नाउ डेज आई सी कि खाने में उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है। इवन तो अगर टेस्ट है तो खाना आते थे ठंडा हो जा रहा है, या फिर खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आजकल के खाने, आजकल का जो फूड होता है, और मैंने एक चीज़ और गौर किया है कि जब खाने में अगर 20 या 30% डिस्काउंट्स देंगे तो क्वालिटी कम कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, ऐसा भी मैंने देखा है। मैंने देखा क्या, मैं हमेशा ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ, आई हैव सीन इट। इवन मैंने देखा है जब मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था तो पिज़्ज़ा में बहुत सारे क्वालिटी को कम रिड्यूस कर देता था जब वो किसी तरह का डिस्काउंट देता है तो। सो ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एज वेल। तो इसी चीज़ की वो बातें कर रहा है। वो उस समय लिख रहा था 1950s 1960s के आसपास, है ना। नाउ कहता है कि ऑथेंटिक वर्सेस मैन्युफैक्चर्ड कल्चर, दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। एक ऑथेंटिक और मैन्युफैक्चर्ड कल्चर की बात करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो ऑथेंटिक और मैन्युफैक्चर्ड कल्चर है इसके बारे में किसने डिस्कस किया है और किसने अपने किस वर्क में डिस्कस किया है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रिचर्ड हॉगर्ट ने अपने जो फेमस वर्क है इनका, जो आज हम पढ़ रहे थे, द यूजेस ऑफ लिटरेसी के अंदर वर्क किया है, जिसके अंदर उसने मास मीडिया को एनालाइज करने की कोशिश की है। कहता है ऑथेंटिक वर्किंग क्लास कल्चर 1950s के अराउंड rooted in the shared experiences which I have already explained, local communities, oral tradition and moral seriousness। इनके अंदर क्या होते थे, moral seriousness था, है ना, एक oral tradition था, local communities थे, they had a different kind of bond, they had a pure authentic honest bond, है ना। and then what happened, manufactured mass culture came। so it was driven by the market logic, how market works, how market regulates। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आ गए, एडवर्टीजमेंट आ गया, है ना। हाउ मतलब दे वांटेड टू मैनिपुलेट ह्यूमंस इमोशन, दे वांटेड टू मैनिपुलेट ह्यूमंस थॉट। सो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इवन दो व्हेन वी थिंक दैट वी आर वाचिंग समथिंग एंटरटेनमेंट, बट स्टिल एक्चुअली वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट, है ना। हम लोग इंगेज हो रहे हैं उसके अंदर, और वो जो इंगेजमेंट है वो मे बी हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है ना। लेट्स से इफ यू आर वाचिंग फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी फेमस सीरीज है, या हाउ आई मेट योर मदर, ऐसे करके बहुत सारी टीवी सीरीज हैं। सो व्हेन वी आर वाचिंग दैट हिट कमर्शियल्स, we feel that this is only for the entertainment, but actually this is not only for the entertainment, this is also an eye catching element, this is also a kind of creating a social hierarchy, especially Americanization जिसको कहते हैं कि this is how American culture lives, this is how American culture is, because you will see all the time they will order pizza, they will order this, they will order that, है ना। They will do different things, so you will start believing that ordering a pizza is a cool thing, है ना। और you know, I mean, these are some of the examples, like जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है, जिस तरह से उसमें शो ऑफ किया जाता है, जिस तरह से उसमें दिखाया जाता है कि अचानक से आप रिच हो जाओगे, आप एक एलिट कल्चर में बिलोंग कर, मतलब आप अचानक से बहुत बड़ा कुछ करने लगोगे। सो ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड थॉट, ऑल दीज आर मैन्युफैक्चर्ड ड्रीम। This is what he is talking about. He is talking about जो manufactured of mass culture है, it is purely based on the entertainment industry. It is purely based on कह सकते हैं कि आपके माइंड को चेंज करने के लिए किया गया है ना, सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए किया गया है, जिसको अमेरिकनाइजेशन बोला गया। जैसे ईटिंग पिज्जा इज नॉट हेल्दी एट ऑल, बट स्टिल जब आप टीवी सीरीज देखते हो ना, जैसे फ्रेंड्स आपने देखा या कोई और टीवी सीरीज देखा, तो उसमें जैसे ही भूख लगी लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, विच मींस दे आर टेलिंग यू इफ यू ऑर्डर पिज्जा तो आपकी जो भूख है वो खत्म हो जाए। आप तो खाना बना के भी खा सकते हो, बट दे वोंट शो इट। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये किस तरह से सोसाइटी पे लोगों के ऊपर, है ना, किस तरह से लोगों को चेंज करता है, किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी बात करता है। वही है सम ऑफ द की आर्ग्यूमेंट्स। वर्किंग क्लास कल्चर ऑफ द 1930s, उसमें आर्ग्यूमेंट करता है जो वर्किंग क्लास कल्चर था उसको उसने लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में बोला। एक कम्युनल एंड सेल्फ मेड, है ना, सेल्फ मेड था, उसमें ऑथेंटिसिटी थी, उसमें रियलिटी थी, शेयर्ड एक्सपीरियंस था उसके अंदर। इट वॉज एंटरटेनमेंट वॉज पार्टिसिपेटरी, एंटरटेनमेंट पार्टिसिपेटरी था, लोग पार्टिसिपेट करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर फोर्स किया जाता था। जैसे लोकेटेड इन पब्स, सॉन्ग्स, है ना, सी साइड ट्रिप्स एंड होममेड रिचुअल्स। तो ये ऑथेंटिसिटी को दर्शा रहा है। आर्ट एंड कल्चर वेर नॉट हाई कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर था वो इट वॉज नॉट एन हाई कल्चर, वो एक तरह से शेयर्ड कल्चर था।
but had their own internal logic and aesthetics. And it was focused on ordinary and everyday life, mundane life को focus करता था. A taste of the known as opposed to the unknown or exploratory, है ना. इसलिए कहा गया दैट ऑर्डिनरी लाइफ इज इंस्टिंक्टली इंटरेस्टिंग. इसलिए उसने बोला कि जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो क्या है, एक तरह से इंस्टिंक्टली इंटरेस्टिंग है. इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन द कॉमर्शलाइज्ड सोसाइटी. इसलिए हॉगार्ट जो है इट ही हाईलाइट्स अ वर्किंग क्लास मोरल सीरियसनेस, नॉट प्यूरिटिज्म बट डेप्थ ऑफ इमोशनल एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट. तो ये जो वर्किंग क्लास कल्चर था 1950s का, उसमें क्या था कि इट हैड अ डेप्थ, इट हैड एन इमोशनल डेप्थ एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट थे. बट अब क्या हो गया है, मास कल्चर आने के बाद मास एंटरटेनमेंट शुरू हो गए, जैसे सोप ओपेराज, पॉपुलर फिक्शंस, रेडियो, ऑल दीज थिंग्स है ना, स्टार्टेड शेपिंग पीपल. इट वाज पोर्ट्रेड एज अ कमर्शियल, सुपरफिशियल एंड मैनिपुलेटिव. लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, है ना. ऑब्वियसली बात है कि आपको डायरेक्टली मैनिपुलेट तो नहीं करेगा ना, आपको लगेगा नहीं कि यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, बट स्टिल जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिज्जा का, तो जिस तरह से बार बार दिखाया जाता है कि अगर आपको भूख लगे तो आपको पिज्जा तुरंत ऑर्डर हो जाएगा, तो आपको भी फील होगा कि मुझे भी पिज्जा ऑर्डर कर लेना है. आप भी उसी तरीके के सुपरफिशियल लाइफ में जीने शुरू कर दोगे, है ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया फ्रेंड्स में, जब आपस में सब आते थे, एक रूम में बैठते थे, भूख लगा तो तुरंत ऑर्डर कर दिया चाइनीज फूड, तुरंत ऑर्डर कर दिए. तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कमर्शलाइज हो गया, है ना. वो नहीं कहते हुए भी आपके दिमाग में ये बैठा दिया कि अगर आपको भूख लगी है, आप फ्रेंड्स के साथ हो, तो तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर लो, इवन दो यू कैन कुक अ मोर हेल्दी फूड देन दैट. एक शेयर्ड कम्युनिटी के थ्रू आप आपस में मिल के खाना बना सकते हो, बट स्टिल उसने क्या कर दिया, आपको कमर्शलाइज करके आपके दिमाग को क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया. और आप क्या करते हो, तुरंत पिज्जा ऑर्डर कर देते हो, तुरंत स्विगी से, तुरंत जोमेटो से ऑर्डर कर देते हो, है ना. एंड देन दैट वो जो शेयर्ड कल्चर है, वो जो शेयर्ड फीलिंग है साथ में खाना बनाने का, है ना, साथ में बातें करने का, वो खत्म हो जाता है. दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट. फिर कहता है कल्चरल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एंटी लाइफ कमोडिटीज. ये एंटी लाइफ कमोडिटीज है, इट इज नॉट समथिंग विच इज प्रो लाइफ, है ना. फिर कहता है डिजाइंड टू पैसिव कंजप्शन. ऑब्वियसली बात है, इट इज डिजाइंड एज अ पैसिव. आप पैसिवली उसको कंज्यूम करते हो, वन आफ्टर द अदर. जितना ज्यादा आप देखते हो, आपको लगता है कि यू आर बीइंग एंटरटेन्ड, बट एक्चुअली यू आर बीइंग अ कंज्यूमर, यू बिकम अ कंज्यूमर. फिर कहते हैं कैरेक्टराइज बाय मोरल इन्वेजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड लैक ऑफ इमोशनल डेथ. और इसके अंदर क्या होता है कि मोरल इन्वेजन होता है, आपके मोरल को इन्वेट कर दिया जाता है. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है ना. पिज्जा खाने के बाद आप तुरंत एकदम ग्रेटिफाइड फील करते हो, या फिर किसी चीज को देखने के बाद इमोशनली तुरंत आप सेटिस्फाइड हो जाते हो. और वहां पे लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ होता है, लेकिन उस चीज के अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं होता, क्योंकि आप एक्चुअल में फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली फीलिंग द ट्रू, है ना, लिव्ड एक्सपीरियंस देयर. फिर कहता है मास मीडिया एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है, जिसमें कि टीवी, पॉप मैगजीन, कमर्शियल रेडियोज, ऑल दीज थिंग्स हैव डिस्टर्ब द रियल ऑथेंटिक कल्चर, है ना. फिर क्रिएटिंग हार्मोनाइज्ड कल्चर, undermined class identity, है ना, critical thinking. He critiques media uses of exaggeration, emotion और cliche. उसने बोला ये मीडिया जो uses है वो exaggerated thinking है, exaggerated emotion है ना. जैसे टेलीविजन सीरीज पे आपको इस तरह से इमोशंस दिखाए जाएंगे, या फिर कॉमेडी सीरीज में आप देखोगे इस तरह से आपके इमोशंस दिखाए जाएंगे, एक्सैजरेट किया गया है ना, एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, जो कि लिव्ड एक्सपीरियंस में नहीं होता वैसा. जैसे अगर रोमांटिसाइजेशन है, अगर कोई रोमांटिक सीन दिखाई जा रही है, तो आप टीवी सीरीज में देखोगे, कमर्शियल्स में देखोगे कि इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि उतने एक्सट्रीम पे एक्चुअल में रियल में होता ही नहीं है ना. तभी तो कहते हैं ना कि बहुत ड्रामेटिक हो रहा है ना, या फिर कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसे इसकी लाइफ मूवी की तरह बन गई हो. तो वो सब कहाँ है, वो इन्फ्लुएंसेस कहाँ से मिल रहा है, वो जो इन्फ्लुएंसेस है वो एक तरह से टीवी कमर्शियल से, टीवी सीरीज से, है ना, ये क्या कहते हैं मॉडर्न कमर्शलाइज्ड सोसाइटी से हमें सीखने को मिलता है. ऑब्वियसली वल्गैरिटी टू ग्रैब अटेंशन, वल्गैरिटी का यूज किया जाता है अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. तो आजकल के जितने भी टीवी सीरीज हैं, सिनेमा है, ड्रामा है, हर चीज में आपको वल्गरिज्म दिखेगा, ताकि लोगों का और ज्यादा अटेंशन क्रिएट किया जा, और ज्यादा अटेंशन सीख किया जा सके, है ना. इसलिए कहता है कि मीडिया वाज टर्निंग पीपल इनटू पैसिव कंज्यूमर्स, नॉट एक्टिव थिंकिंग सिटीजंस. एक्टिव थिंकिंग सिटीजन की तरह नहीं, बल्कि एज अ पैसिव कंज्यूमर की तरह उसको देखा जाने लगा. फिर वही है अमेरिकनाइजेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म. तो उसमें क्या था कि पार्टिकुलरली ही क्रिटिक्स ऑन इन्फ्लक्स ऑफ अमेरिकन कल्चर प्रोडक्ट्स, स्पेशली जब व्हेन वी टॉक अबाउट हॉलीवुड सिनेमा, हॉलीवुड फिल्म, पल्प मैगजीन्स, पॉप म्यूजिक, है ना, ग्लैमराइज वेल्थ, सेक्स एंड वायलेंस. इसलिए इफ यू सी जितने भी अमेरिकन कल्चर को, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन टीवी सीरीज, अमेरिकन मूवीज, तो इसमें यही सारी चीजें होती है. हॉलीवुड सिनेमा में आपको दिखाई जाएगी ग्लैमराइज वेल्थ, अचानक से वेल्थ बहुत सारे क्रिएट हो गए, है ना, बहुत सारे पैसे आ गए. जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस एक मूवी है, या फिर
किसी भी तरीके की मूवी आप देख लो, उसमें यही सारी सेक्स दिखाया जाएगा, वायलेंस दिखाया जाएगा, ग्लैमराइज्ड वेल्थ दिखाया जाएगा, है ना? और उसके पॉपुलर कल्चर को दिखाया जाएगा कि सबसे बेस्ट कल्चर, इवन दो पॉपुलर सॉन्ग्स, पॉपुलर म्यूजिक्स, दे डू नॉट हैव अ गुड क्वालिटी लिरिक्स, बट स्टिल उसको इस तरह से दिखाया गया जैसे कि पॉप कल्चर ही सबसे बड़ा कल्चर है। तो ये जो अमेरिकनाइजेशन था, वो एक्चुअली में कॉमर्शलाइजेशन है ना? वो कोई रियल लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी बात करता है वो। और खासकर ये जो अमेरिकनाइजेशन है, वो किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, किस तरह से चेंज कर रहा है ब्रिटिश सोसाइटी को, इसके बारे में उसने लिखा है। फिर कहता है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, वही है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है वहां पे, है ना? क्योंकि इंडिविजुअल एज ए कलेक्टिव, जैसे रूटेड इन द फैमिली, नेबरहुड एंड क्लास सॉलिडारिटी, सब आपस में मिल के करते थे। बट न्यू कंज्यूमर कल्चर में हाउएवर इनकरेज इंडिविजुअलिज्म, उसके अंदर इंडिविजुअलिज्म आ गया, थ्रू पर्सनल प्लेजर आ गया, कंजम्पशन आ गया, इरोडिंग कम्युनल बॉन्ड्स, है ना? कम्युनल बॉन्ड खत्म हो गया, धीरे धीरे समाज कटते चले गए एक दूसरे से, है ना? अब कहता है कि अदर वर्क्स में आ गया इसके कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, an approach to the study of literature and society, which was published in 1969, and this book advocates for the study of literature in the social and cultural context. It engages non-elitist approach to literature, seeing it as a reflection of the everyday life. Again, he was influenced by the working class culture, working class people, because he also belonged to a working class family. Influential in academic circles of establishing literature as a part of wider cultural studies. ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली पढ़ सकते हो कि ये टॉक्स अबाउट मास कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द बुक जो है वो 2 डिवीजन में बटा हुआ है। एक ओल्डर कल्चर की बात करता है, प्रिजर्व कल्चर की बात करता है, एक उसके बाद जो न्यू यील्डिंग कल्चर बनते हैं उसकी बात करते हैं, कमर्शलाइज्ड कल्चर की बात करता है ना? जो सुपरफिशियल है, पासिव कंज्यूमरिज्म है, डिस्ट्रॉय कर देती है कम्युनिटी को, है ना? फिर ये वर्किंग क्लास सेल्फ मेड होता है, रिचुअल्स, कमर्शियल्स, पब्स, इन सारी चीज़ों की बातें करता है। आर्ट एंड ऐसे क्या यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन है, थोड़े मिस्टेक्स हैं क्योंकि मैंने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको बनाया है, तो ये थोड़े मिस्टेक्स हैं इसमें सेंटेंस के, बट एनीवे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल आपको समझ आ गई होगी। तो दिस वाज ऑल। यहाँ से बियॉन्ड यूजीसी नेट या कोई भी एग्जाम, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, चाहे आप पीजी में हो चाहे आप यूजी में हो, तो इससे बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यू कैन इजीली, इफ यू आर इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड इफ यू वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर, तो दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू, दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। Second, if you are preparing for UGC NET, if you are preparing for assistant professor, देन ऑफ कोर्स यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस बनेंगे नहीं और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, एक तो बोलेगा इसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको सीरियली सजाने के लिए, तो रिचर्ड हॉवर्ड से ऑलरेडी वो क्वेश्चन आ चुका है, मे बी नेक्स्ट टाइम दोबारा से पूछ दे। फिर क्वेश्चन बनेगा कि रिचर्ड हॉवर्ड की जो मेजर थीम्स हैं, मेजर कंसर्न्स हैं, है ना, मेजर क्रिटिक है, वो क्या है? तो ऑब्वियसली बात है वो मास कल्चर वर्सेस लिव्ड एक्सपीरियंस के बारे में बातें कर रहा है, ब्रिटिश कल्चर वर्सेस अमेरिकनाइजेशन के बारे में बातें कर रहा है ना? उसके बाद क्या कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछ देगा, है ना? इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।